This VNet, conference will now be recorded. VNet pairing. तो देखिए VNet pairing का कॉन्सेप्ट क्या है कि गाइस ये हमारा एक रीजन है, दिस इज अ वन रीजन, एंड इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम लोगों ने क्या क्रिएट करे, वी आर क्रिएटिंग द टू VNets. आई एम क्रिएट टू VNets. Like there's the one VNet with the name of like VNet 1, and this is a VNet 2. For every VNet use the two subnets. This is like subnet 1 and subnet 2. अब सपोज करो कि ये जो हमारा VNet 1 है, दिस इज माय VNet 1. It's used the IP is 192.168.1.0/24, and the another VNet is using the IP VNet 2, and it's used the IP is called like a 10.0.0.0/24, and the subnet is using the IP like 192.168.1.0/26, and here is using the subnet like 192.168.1.64/26. Here using the IP is like 10.0.0.0/26, and here is using the 10.0.0.64/26. Guys, यानी कि I'm getting the four subnet like SUB subnet 1, like HR department is also available, and here is the sales department is available. Sales department is available. This is my SUB subnet 2. बट कंपनी क्या करती है कि दो डिपार्टमेंट्स आपके VNet 1 पर कनेक्टेड है, बट कंपनी के दो और डिपार्टमेंट है. वन इज मार्केटिंग, marketing department. It's called HR, like SUB subnet 3 is available in VNet 2, and one more department is account. Is it subnet 4? अब कंपनी चाहती है कि ये दोनों चारों डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट करें, बट गाइस बोथ आर वर्क इन अ सेम रिसोर्स ग्रुप. पहली बात तो सारे के सारे क्या है, सेम ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर अवेलेबल है. यूज सेम रिसोर्स ग्रुप. दूसरा, इट्स यूजिंग द सेम रीजन, सेम रिसोर्स ग्रुप एंड रीजन, बट उसके बावजूद भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि द सेम वीनेट सबनेट शुड बी कनेक्टेड एंड शेयरिंग डेटा. जो भी सेम वीनेट के सबनेट्स हैं वो आपस में तो इंटरकनेक्टेड हैं, बट डिफरेंट वीलेंस के सबनेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वीनेट्स in a same region, you can enable the VNet pairing. तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको कम्युनिकेट कराने के लिए इनेबल करेंगे VNet pairing. Guys, got it? Why we are using the VNet pairing? Parveen, Virender, got it? Got it, sir. Got it. तो उसके Yes, बाद sir. क्या Got होगा it. कि जितने भी ये सिस्टम्स हैं ये सब हमारे कम्युनिकेशन होना चाहिए. अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. सो एक काम करते हैं, पहले इस वाली लैब को कराते हैं, देन मूव टू अनदर लैब. ठीक है गाइस, वन बाय वन चलते हैं. तो आई एम क्रिएटिंग द सेम सिनेरियो. मैं गाइस दो VNet क्रिएट कर रहा हूं इन सेम रीजन एंड सेम रिसोर्स ग्रुप के अंदर, एंड देन उसके बाद आई एम डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन्स.
मैं 2 वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, एक वीनेट 1 पे डिप्लॉय करूंगा, एक वीनेट 2 पे डिप्लॉय करूंगा, एंड देन फिर हम कम्युनिकेशन कराएंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारी मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं कर रही। गॉट इट वीरेंद्र? So I'm just click and then go to virtual networks and create and flat group. I'm just using the pay-as-you-go subscriptions, and there is a no resource group is available. So there the one resource group is available with the name of web SG. So I'm using this same web resource group. So आप लोगों को resource group बनाना भी आता है. You also create the resource group through the create new this tab से, and I'm give the name is like VNet1, and region I'm using the East US regions, guys, and after click each one, then next, and I put the subnets is like VNet1 का subnets हम guys ले लेते हैं same as per the diagram 192.168.1.0/24, and click on the add subnets and put the subnets name like this is my SUB subnet one, is it called HR, and I'm put the name is 192.168.1.0/24 26. So guys, you know कि /26 का मतलब है there the 64 IPs is allowed in my subnet 1, but the Azure reserve the 5 IPs for the like a network IP, broadcast IPs, gateway IPs, and 2 IPs is for the DNS. So that's why it give me the 59 plus 5 Azure IPs, and then click on add. I'm getting the one more subnet, so I'm just click on add subnets and give the name is like SUB subnet 2 with the name of like subnet 2, and give the name of like sales, and give the name is 192.168, put the IP is 1.64/26. Same I'm repeat 64 to 127 block size, and the 59 plus 5 my Azure IP is used for my virtual machines, and review and create. And create. So guys, this is my VNet 1. So यहाँ पर VNet 1 हमने अभी deploy करा है. I am deploy the one more VNet. So I'm just getting the within a region. Different region में भी हम कर सकते हैं, but this is my global VNet pairing होगी. So at this time I'm using the VNet same region. So I'm just click on home and then again click on virtual networks and create and select the subscriptions and select the same resource group. It's your choice कि you can use the another resource group also. So I'm using the same resource group and give the name is VNet2, and same locations. Then next, and give the IPs is it like 10.0.0.0/24, and add the subnets. I'm adding the 2 subnets like SUB subnet 3 is called, the name is like MARK marketing, and give the IP is 10.0.0.0/26, and then add, and again I'm just click on add subnets and give the name is like a SUB, and it is subnet 4, and give the name is like ACCOUNT account, and give the name is 10.0.0.0/64/26, and then add and review and create. So guys, at this time अभी हमने क्या करा, I'm creating the 2 VNets. मैंने अभी अपना क्या करा है, I'm creating the 2 VNets. मैंने अपने 2 VNets create करे हैं. This is a VNet 1 and this is VNet 2. After that I'm creating the 2 subnets in for each VNet. So HR, sales, and VNet 2 is marketing and accounts. Guys देखिए, you can add the subnet during create the virtual network or after existing VNet. So अगर आपको existing VNet के अंदर भी अगर आपने subnets add कराने हो, like you can add like one more subnet here and you can add one more subnet here for the existing VNet. So आप वो भी करा सकते हो. बट उस केस में क्या होना चाहिए कि पहले तो आपका जो VNet 1 बनाया है उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या IPs अवेलेबल हैं. So yeah, they're the /24. That means I'm using the 256 IPs, but here I'm using the only 128 IPs, 64 the each subnet. That means कि मेरे subnet में अभी 128 IPs और हैं. So I'm getting the more subnet. So अगर आप VNet बनाने के बाद भी अगर और भी subnets यहाँ पर add on करना चाहते हो अपने VNets के साथ, तो कर सकते हो.
but existing VNet. So how to add more subnet in existing VNet? अगर आपको अपने existing VNet के अंदर subnets create करने हो तो आप कैसे करेंगे? So already my VNet 1 is created. तो मेरा VNet 1 already create हो चुका है guys. So I'm just click on a home and then click on virtual networks and select the subscriptions. So guys देखिए यहाँ पे VNet 1 हो चुका है. I'm just click on VNet 1 और VNet 1 पे क्लिक करने के बाद you can see the option is coming for the subnet. You can click on subnet and you can see कि ये दो VNets मैंने बनाए हैं. अगर आपको और भी subnets ऐड करने तो you can just click on subnets and give the name like sub subnet with the name of like subnet 5 and give the name is it called like मैं बोलता हूँ OU के नाम से मैंने एक अपना सबनेट बना रहा हूँ एंड गिव द रेंज इज इट /26 ही गाइस मैं ले लेता हूँ एंड सेव. तो आप इस तरीके से और मल्टीपल सबनेट्स या फिर अगर आपको अपने सबनेट डिलीट करने हैं तो आप वीनेट्स पे क्लिक करके उसके अंदर जाके अपने वीनेट्स को एडिट कर सकते हैं. अपने सबनेट्स को डिलीट करना है, ऐड करना है, जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है आप यहाँ पे पर्टिकुलर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो. गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन? Clear, sir. Clear. Same as VNet 2, I am getting the one more subnet in VM2, like click and click on like click and subnets. So already two subnet created in VNet 2. I'm getting the one more subnet, and I'm just give the like SUB subnet 6. Is it called the GPO group policy object? And I'm put the IP address is like a /26 and save. अब आता है guys, there's a communication. By default, there is a no communication between within region in two VNets. So within subnets, so communication established है, but between regions, there's a no communication between VNets. तो यहाँ पर हमारा कोई भी communication between region नहीं है. क्यों? क्योंकि they are the is it VNet 2 or VNet 3. So यहाँ पर same VNets के systems and subnets are connected with each other. But if I'm talking about the different VNet, there is a no communication. और अगर हम उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीनेट पेयरिंग. बट वीनेट पेयरिंग से पहले हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले टू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, दोनों सबनेट्स में एक एक, और पहले हम चेक करते हैं कि द कनेक्टिविटी इज देयर और नॉट. So I'm just create on two virtual machines. I'm just click on home and click on virtual machines, and I'm creating the one virtual machine in VNet 1 and subnet 1, and I'm creating the virtual machine to VNet 2. So click on virtual machines and select the existing security group. Give the name is VM1-VNet1 and put the name is VM1. It's available in VNet 2 and I'm not select the any availability on availability set. I'm just deploy. I'm select the only reasons and select the server 2012 and one CPU 1 GB memory and put the IP username and the password. And I'm allow the protocols particular I'm allow the RDP protocols, or I'm just allow the RDP protocol, no need for the other. And next, and I'm select the normal hard drives, standard SSD and networking. So these are the most important part. We have you can see that the both VNet show in this particular virtual machines property. So I'm select the VNet 1 or VNet 1 के अंदर I'm creating the three subnets. The all three subnets is available. They are connected for the OU departments or HR department or sales department. So I'm select the OU. So I'm just select the HR कि मैं चाहता हूँ कि HR पे हो. This is my public IP and then review and create. I'm getting the one more virtual machines after this is my VNet 1 virtual machines and it using the IP of the 192 range. So यहाँ पर ये 192 range के IP use करेंगे and I'm get the another virtual machine. So guys just wait. I'm getting the one more virtual machine, so I'm just click on home and after click home I'm just click on virtual networks, sorry virtual machines, and then again click on create and then virtual machines, and at this time put the select the same resource group and give the name is VM
2 is it VNet 2, and I'm select the only reason I'm not select the enability Jones and give the name is and then again click I'm select the only RDP protocols. You know the SSH for the Linux, and if I'm just allowed the IIS service or I'm deploy the web server, so we need for the HTTP or HTTPS protocols, but I'm just allow only RDP because I'm just check the connectivity between machines or between VNets. Then next networking, or at this time I'm select the VNet 2 and select the VNet 2 subnets. There the 3 subnets is available. I'm select the marketing subnets and review and create. Is it clear everyone? How to create virtual networks and how to deploy virtual machines. Vrinda, Paveen, Siv, is it clear? हाँ सर, ये सिमिलरली AWS के जैसा है ना, सबनेट वगैरह, VPC वगैरह उस टाइप का ना सर? Yeah. Complete the same is the complete VNet. वहाँ पर VPC बोलते हैं, यहाँ पर VNet बोलते हैं. और वहां पर ठीक है सबनेट, यहाँ पे भी सबनेट है, ठीक है. अच्छा सर, एक चीज बस, बाकी ये सेम वाला लॉजिक है. ओके सर, ये वाला बताइए. कॉल करके शेयर करोगे ना? Yeah. ओके. Chलिए guys, so just click on home and I'm login with the one by one. I'm just login the virtual machine, check कि क्या VNet 1 और VNet 2 आपस में connected है. So you know the connectivity check करने के लिए we are using the ping command and the ICMP packet. So just आपको when you provide the communication between check the connectivity through the ping, so you can just disable the firewall. So I'm just click on virtual machines and I'm login with the VM1. So click on VM1 and then click on RDP, और RDP भी नहीं लेते हैं तो you can just copy the public IP of this particular machines and then go to remote desktop. वैसे real time पे हम public IP से communication नहीं करते हैं. We are using the VPN concept. So connect and my username is ICCP and the password is ASD@1234560. And you can see that my first machine is login. The IP is 192.168.1.4. And I'm logging the one more machine, VNet 2 I'm logging, so I'm just click on virtual machines. So what happened? Sabhi deploy nahi hui kya VNet 2. So this is my VNet 2 and I'm just copy the IP and control V and then connect and so guys मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'm not access this virtual machine through RDP. मेरे को क्या करना है, मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है. सो अगर मेरी इन दोनों वर्चुअल मशीन्स की कनेक्टिविटी होगी तो मेरी ये वर्चुअल मशीन इसी के अंदर से एक्सेस हो जानी चाहिए. यस और नो गाइस? एवरीवन? यस सर, कनेक्टिविटी ना दोनों मशीन ना इसी के अंदर से. सो मैं आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप. मैं यहाँ से आके रिमोट डेस्कटॉप लेता हूँ, पर्टिकुलर जो मैंने वर्चुअल मशीन एक्सेस करी है, और आई एम यूजिंग द प्राइवेट आईपी एंड यू कैन सी द VNet 2 प्राइवेट आईपी इज 10.0.0.4 and my VNet 1 private IP is 192.168.1.4. So I'm using 10.0.0.4. I am put the IP is 10.0.0.4 and then click connect. So you give me the error. Why? Virender, Parveen, बताएंगे why this error is coming? क्यों मेरी ये मशीन एक्सेस नहीं हो रही है? प्राइवेट है इसलिए, पब्लिक नहीं बनाया हमने. अभी रुक जाओ शिव, परवीन, वीरेंद्र. सर सेम VM सेट में ना होने की वजह तो नहीं है? अरे यार both are belong in different VNet यार, और आई एम नॉट इनेबल पेयरिंग. There is no communication. मेरा communication ही नहीं है अभी VM1 और VM2 के बीच में. पहली बात तो सेम सबनेट पे नहीं है, सेम VNet पे भी नहीं है. both VMs work in different VNet, और डिफरेंट VNets कब कम्युनिकेट करेंगे? जब मैं पेयरिंग इनेबल करूंगा. तो अभी आप देख रहे हो कि बिफोर पेयरिंग देयर इज नॉट एक्सेस, मेरी मशीन से एक्सेस नहीं हो रही है, गिव मी द एरर. तो अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं इन दोनों की VNets के बीच में पेयरिंग इनेबल कर दूंगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो चेक, आई एम enable the pairing. So how to enable pairing guys?
you can just go in virtual networks. When you enable the pairing, so I'm just enable the pairing is a local redundant pairing is within a region, so I'm not enable the global VNet pairing. So I'm just click go to the virtual machines and go to the any subnet. आप किसी भी subnet पे जाइए. I'm just going VNet 1 and VNet 1 के अंदर you can see the option is coming the pairing connection. I'm just click on pairing and then click on add. Give the pairing link name like I'm just put the pairing like a VNet 1-2- VNet 2. So ENABLE enable pairing VNet 1 to VNet 2. So guys allow the default traffic. सारी चीज मैं अलाउ कर रहा हूँ. पेयरिंग लिंक नेम. सो गाइस देखिए ये आपका सोर्स का नेम पूछ रहा है. दिस इज योर सोर्स नेम. तो पहले क्या था अजूरे, जब पहले अगर हम बात करते हैं आज से 2 इयर्स पहले, तो हमें दोनों वीनेट्स के अंदर जाके पेयरिंग इनेबल करनी पड़ती थी, बट उन्होंने अब क्या कर दिया है, सिंगल एड से पेयरिंग का ऑप्शन दे दिया. तो दिस इज योर सोर्स. तो सोर्स में आपका वीनेट 2 है. तो जस्ट वेट गाइस. तो गाइज आई एम जस्ट इनेबल द रिमोट एंड यानी कि सेकंड वीनेट. सो यहाँ पे इनेबल पेयरिंग वीनेट 2 to 1. तो बहुत साइड की पेयरिंग सिंगल एंड से रिमेनिंग हो रही है. और यहाँ पे वो पूछा है वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट मॉडल रिसोर्स मैनेजर ही ले लेते हैं. तो आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में. एंड PSU को हमारा सब्सक्रिप्शन है वर्चुअल नेटवर्क. आई एम सेलेक्ट द VNet 2. तो VNet 1 हमारा ऊपर है, यहाँ पर हम VNet 2 सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन ऐड. और गाइस देखिए यहाँ पे दोनों पेयरिंग हो रही है. पेयरिंग VNet 2 to 1 और 1 to 2. तो बहुत साइड की पेयरिंग हमने एक सिंगल एंड से यहाँ पे क्या कर दिया, इनेबल कर दिया. और आफ्टर इनेबल पेयरिंग, जैसे हमारी पेयरिंग इनेबल हो जाएगी एंड यू कैन जस्ट क्लिक ओके एंड देन अगेन क्लिक कनेक्ट. सो यू कैन सी कि आपकी जो मशीन है वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगी. सो जस्ट वेट कि मेरी पेयरिंग अभी स्टैब्लिश हो जाती है. सो उसके बाद चेक करते हैं हम. Wait. So is it connected? The enable VNet pairing connected with VNet 2. Gateway transit is disabled. So within a LAN pairing है मेरी. So guys होनी तो चाहिए. Yeah. So ICCP is username and the password is. And guys you can see कि देखिए मेरी दोनों मशीन से यहाँ पर लॉगिन हो गई है. मैंने VNet 1 से ही VNet 2 की मशीन को भी एक्सेस कर लिया. Got it the point guys? So when you provide the communication between two or more multiple VNets, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी. Is it clear guys? वीरेंद्र, परवीन, क्लियर है? पेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन फिर से देखना होगा. पेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन अभी जो आपने की थी. Is it nothing? You can just click on. You can go to the VNet. You can go to the any VNet. Okay. And then click on pairing. The option is coming pairing. And then add pairing. Add pairing में सोर्स पेयरिंग का तो ऑटोमेटिकली ले रहा है, ये देखिए ऊपर. तो यहाँ पे सोर्स पेयरिंग का नाम पूछा है, डेस्टिनेशन पेयरिंग का नाम देकर डेस्टिनेशन नेटवर्क आपको सिलेक्ट कर लेना है. मतलब ये ड्रॉप डाउन में सब जो नेटवर्क हमने बनाया वो आएगा. हाँ ये आ रहे ना. तो ऊपर VNet 2 है तो आई एम सेलेक्ट द VNet 1. ऊपर 2 है तो नीचे VNet 1 ले लूंगा ना मैं. अगर मैं 2 से रख के कर रहा हूँ यानी कि मैं VNet 2 के अंदर हूँ तो VNet 1 सेलेक्ट करूंगा. और VNet 1 के अंदर हूँ तो 2, क्योंकि सोर्स तो अपने आप ही ले लेगा ना वो. तो हमें दोनों साइड से करने की जरूरत नहीं, एक साइड से हो जाएगा. नहीं यहीं से ही दोनों, पहले था दोनों उसमें जाते थे VNet में, बट अब वन साइड. अब एक चीज ध्यान रखना गाइस,
अगर आपके इस तरीके से आपके 3 वीनेट्स हैं, सपोज करो दिस इज योर 3 वीनेट्स, इज कॉल्ड लाइक वीनेट 1, वीनेट 2 एंड वीनेट 3। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम इनेबल द पेयरिंग बिटवीन वीनेट्स। मैंने यहाँ पे बिटवीन वीनेट्स क्या कर दी, पेयरिंग इनेबल कर दी है। आई एम इनेबल द पेयरिंग बिटवीन वीनेट्स। तो किस किस के बीच में कम्युनिकेशन होगा, कोई बताएगा गाइस? तो वीनेट 2 सब V1 वीनेट 1 और VNet वीनेट 3 1, दोनों जैसे एक्सेस हो सकता yeah, है। no, I'm asking to the VNet 1 only connected to VNet 2 करेक्ट। and VNet 3 And only V2 connected to VNet 4. Sorry, VNet but 2. V2 There is a but no V2 communication between VNet 1 or VNet 3. When but you sir provide the VNet 2 can communication access between both. wait. When you provide the communication VNet 1 or 2, 3, so you are creating the pairing connection again. Got it the point? वीरेंद्र क्या पूछ रहे थे बताइए? नहीं, आपने क्वेश्चन उसका आंसर दिया था कि अभी क्या है, VNet 2 जो है दोनों VNet 1 और VNet 3 दोनों को एक्सेस कर सकता है, उसके बाद या दोनों को एक्सेस है। ओके। या बट और हमें VNet 1 अगर VNet 3 से नहीं कर सकता और VNet 3 VNet 1 से भी नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कम्युनिकेशन हो, we can also enable the VNet 1 between pairing VNet 1 और VNet 3 also. तो मतलब सर हम एक टाइम पे सिर्फ 2 ही VNet के अंदर कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हैं। चॉइस इज योर, आप मल्टीपल पेयरिंग करो, वो आपके ऊपर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट मैं एक रूल बता रहा हूँ, दिस इज अ रूल, कि ऐसा नहीं है कि अगर VNet 2 मेरे 3 से कनेक्ट है तो 1 भी 3 से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं। वाया VNet 1 का ट्रैफिक 3 से नहीं जाएगा गाइस, वाया 2, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन हमने 1 और 2 का करा है, तो 1 का ट्रैफिक 3 पे नहीं जाएगा। अगर आप 1 और 3 का भी चाहते हो तो 1 और 3 के बीच में भी आपको पेयरिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सर इसका मतलब पेयरिंग मतलब जैसे होता है कि 1 और 2, ऐसा नहीं कि 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 1 के साथ 3, मतलब अगर पूरा करना है तो इसी तरह से करना पड़ेगा, राइट सर? 1 of 1, 1 of 1, 1, हाँ 1 on 1, हाँ 1 on 1, मतलब 1 के साथ 2 जो है VNet 1 2 पहले, फिर VNet 2 यहाँ पर 3 3 पेयरिंग हमारी हो रही है, तब जाके ये इंटरकनेक्टेड होंगे सब। जी वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पेयरिंग 1 on 1 ही होगा, ऐसा नहीं 1 on 2, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। गॉट इट द पॉइंट? परवीन, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन थे जो रेज हुए थे उसी में क्लियरिटी आ गई। अच्छा, क्वेश्चन पूछने से पहले क्लियर कर दिया मैंने, गुड है यार। नहीं सर, वो जो 2 चलिए क्वेश्चन रेज हुए ना। अच्छा, अब गाइस यहाँ पर एक और चीज देखिए, अब यहाँ पे एक और नेटवर्क हमारा सिनेरियो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फायरवॉल, अजूर फायरवॉल। अजूर फायरवॉल की अगर हम बात करते हैं तो गाइस यू नो द अजूर फायरवॉल की द फायरवॉल अलाउ प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर, यस और नो? अब गाइस देखिए यहां पर अगर वी हैव क्रिएटिंग द वन वेब सर्वर, और इस वेब सर्वर पर अगर मैं पब्लिक आईपी देता हूं, आई एम गिव द पब्लिक आईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब सर्वर, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक आईपी के थ्रू मेरा पब्लिक कम्युनिकेशन होगा, यस और नो? या कि अगर मेरे को अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो मैं पब्लिक आईपी से एक्सेस करता हूं और उसका डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं, या मुझे अगर इसका आरडीपी लेना है तो भी मैं क्या यूज करता हूं, पब्लिक आईपी से एक्सेस कर रहा हूं, यस और नो एवरीवन? गाइस, वीरेंद्र, यस सर। परवीन, गॉट इट माय पॉइंट? बट गाइस मैं नहीं चाहता अगर मेरी मशीन पर पब्लिक आईपी नहीं है, मेरी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं है,
मेरी मशीन पे ओनली प्राइवेट आईपी है। कौन सा आईपी है? प्राइवेट आईपी है मेरी मशीन पे। प्राइवेट है। और मैं अब इस मशीन को एक्सेस करना चाहता हूं वैन में। मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट भी एक्सेस हो और सारी चीजें हो, बट विदाउट वीपीएन। इज इट पॉसिबल कि विदाउट वीपीएन मैं अपनी मशीन को एक्सेस कर सकूं? प्राइवेट आईपी से तो वीपीएन चाहिए चाहिए ना मेरे को गाइस, यस और नो? सो मैं अगर फायरवॉल सिक्योरिटी, फायरवॉल का यूज करूं तो मैं अपनी मशीन को एक्सेस कर सकता हूं। लाइक कि दिस इज माय फायरवॉल, ये मेरा गाइस फायरवॉल लगा हुआ है और फायरवॉल पे मेरा एक पब्लिक आईपी है। सपोज करो दिस इज माय पब्लिक आईपी ऑफ फायरवॉल। मैं क्या करूंगा, आई एम कनेक्ट दिस मशीन टू दिस फायरवॉल एंड क्रिएट रूल। मैं यहाँ पे रूल क्रिएट कर लूंगा। क्रिएट नेट रूल। नेट रूल का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि आपका पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेशन कराएगा। तो मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, नेट का एक रूल क्रिएट करूंगा एंड दिस रूल इज लुक लाइक कि यहाँ पे जो ये रूल होगा मैं यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूं आरडीपी। अगर मैं आरडीपी एक्सेस करना चाहता हूं और मैं यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूं आपका वेब सर्वर यानी कि एचटीटीपी। तो जो भी प्रोटोकॉल आपको फायरवॉल से अलाउ करने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट करोगे नेट रूल्स। तो जस्ट कि अभी हमने ये जो मशीन एक्सेस करी है गाइस, आई एम एक्सेस दिस पर्टिकुलर मशीन थ्रू द पब्लिक आईपी। अब मैं इस आईपी के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहता, आई एम जस्ट क्लोज दिस मशीन। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम क्रिएटिंग द फायरवॉल। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉन्फ़िगर द फायरवॉल। मैं यहाँ पे फायरवॉल क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन सर्च एंड टाइप द फायरवॉल। अज़ूरे फायरवॉल के अंदर गए एंड क्रिएट फायरवॉल and select the existing resource group and select the like ICCP hyphen FIREWR firewall and where which location. So I'm let's select the central east US and availability John none कर देता हूं मैं एंड स्टैंडर्ड ले रहा हूँ गाइस मैं, या प्रीमियम आप कौन सा लेना चाहते हो। सो चॉइस इज योर कि यहाँ पर आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हो या प्रीमियम लेना चाहते हो। सो आई एम यूजिंग द स्टैंडर्ड। फायरवॉल मैनेजर आई एम यूज द फायरवॉल रूल क्लासिक। तो मैं यहाँ पे खुद का यूज करना चाहता हूँ फायरवॉल रूल्स। सो यहाँ पे यूज फायरवॉल रूल्स एंड क्रिएट एग्जिस्टिंग एंड select the subnets। आई एम जस्ट select the web one एंड यहाँ पर मुझे एक सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर एक सबनेट आ रहा है मेरा VNet1। बट गाइस जब भी आप फायरवॉल बनाएंगे तो आपका जो सबनेट्स है ना वो इस नाम से होना चाहिए, अजूरे फायरवॉल सबनेट। होल्ड करना गाइस। आपका ना एक सबनेट यहाँ पर बना होना चाहिए पर्टिकुलर उस नेटवर्क पे। दिस इज अ नेम इज कॉल्ड अजूरे फायरवॉल सबनेट। इस नाम से आपका एक सबनेट फायरवॉल्स के लिए होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, अपने वीनेट के अंदर जाऊंगा गाइस और वीनेट के अंदर जाके इस नाम से अपना एक सबनेट क्रिएट करूंगा। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? गाइस गॉट इट द पॉइंट? Got it, sir. सो आई एम जस्ट गो टू द VNet1 और VNet1 के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, एक सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। सो विद द नेम ऑफ सबनेट इज अजूरे फायरवॉल सबनेट। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम and go to the subnets
virtual network and go to the VNet 1. And click on subnet, add subnets, and give the name of like AZURA Azure, FIRE firewall, SUBNET subnet, और like इसको भी हम /26 ही दे देते हैं remaining. So Azure firewall subnet and save. तो गाइस मैंने यहाँ पे ये एक सबनेट लिया, तो क्योंकि मेरे को यही सबनेट्स वहाँ पे सिलेक्ट करना, सो अजूर फायरवॉल सबनेट, सो VNet 1 का फायरवॉल सबनेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, एंड आई एम जस्ट क्लिक, एंड देन अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस, मैं इस पोर्टल को रिलोड कर लेता हूँ. So as you go and select the existing security group and select the like ICCP FIRE firewall and select the location, is it the East US, and use the firewall rule classic and use the existing VNet, and I'm select the VNet 1 and select the subnet, is it VNet VM1 VNet IPs. ये तो पर्टिकुलर मशीन का आईपी आ रहा है. No must you force the tunnel enabled. We cannot say with the this firewall the VNet 1 और VNet 2 के बीच में पेयरिंग हो रखी है enable. Just wait guys, I'm just click on home. ओ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'm just change कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें डिलीट कर दे रहा हूँ, like मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रहा हूँ. यहाँ पर मैं अपनी दोनों वर्चुअल मशीन्स डिलीट कर रहा हूँ because I'm using the subscription. So I'm just click all and then delete. Put the yes, and I'm just click on virtual networks, and I'm just click on pairing. फिलहाल मैं पेयरिंग भी डिलीट कर देता हूँ. So I'm delete the pairing. And this is my VNet 1. Is it the subnets is available? HR sales OU and the one the Azure firewall subnets. Or I'm just click on VNet home and then click on Azure firewalls and then click on create. What happened यार, वेब एसजी मेरे सबनेट्स क्यों नहीं दिख रहा, वो आ क्यों नहीं रहा. VM1 VNet 1 IP पब्लिक IP यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, एंड लाइक या मैं यहाँ पे नया IP अपने लिए इसके लिए ऐड कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट ऐड लाइक FIRE firewall -PIP. सो गाइज यहाँ पे एक पब्लिक IP मुझे चाहिएगा, तो मैंने यहाँ पे एक पब्लिक IP भी असाइन कर लिया अपने फायरवॉल को, और VNet 1 वेब एसजी कर लिया. तो अगर आपका वो सबनेट उस नाम से यहाँ पर नहीं बना होगा तो वो आपको कंटिन्यूअसली क्या देना पड़ेगा, एरर देता रहेगा. तो मैं पेयरिंग अभी बाद में दोबारा से इनेबल करूंगा. तो VNet 1 वेब एसजी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया गाइस, न्यू फायरवॉल PIP कर दिया, एंड रिव्यू एंड क्रिएट. तो यहाँ पे 1.0
नेटवर्क के लिए मेरा क्या हो रहा है, फायरवॉल क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो फायरवॉल मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। आई एम क्रिएटिंग द, जब तक मेरा फायरवॉल बनता है ये मेरा थोड़ा टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट्स। सो आई एम अगेन इनेबल द पेयरिंग वगैरह सारी चीज मैं दोबारा से कर देता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क्स। और पेयरिंग भी अगर आपको इनेबल करनी है, सो पेयरिंग का वही है VNet1 एंड अगेन जस्ट इनेबल द पेयरिंग। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं स्किप कर गया था उसको, सो बट मैंने डिलीट कर दिया था, बगैर डिलीट भी हो जाता, मेरे को पब्लिक आईपी देना था, दैट्स इट। सो ऐड पेयरिंग, और पेयरिंग भी मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, लाइक VNet1 हाइफन VNet2, गिव द नेम, एंड यहाँ पे VNet2 हाइफन VNet1 एंड सेलेक्ट द 2 एंड ऐड पेयरिंग। और आई एम क्रिएटिंग द 2 वर्चुअल मशीन्स गाइस, मैं 2 वर्चुअल मशीन्स भी बना लेता हूँ, बट एट दिस टाइम यू कैन सी आई एम नॉट ऐड एनी पब्लिक आईपी टू वर्चुअल मशीन। मैं किसी भी वर्चुअल मशीन को कोई भी पब्लिक आईपी असाइन नहीं करूंगा। गॉट इन माय पॉइंट्स गाइस? पहले मेरे हर वर्चुअल मशीन पे क्या था, पब्लिक आईपी था, बट एट दिस टाइम आई एम नॉट असाइन एनी पब्लिक आईपी एड्रेस इन वर्चुअल मशीन। So I'm just click on virtual machines and create virtual machines and give the name is like I'm select the existing and VNet1 hyphen VM1 and East US I'm select not preferred and ICCP. And I'm allow the protocols is HTTP and HTTPS। और guys मैं यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल भी अलाउ नहीं कर रहा, नन कर दिया है। दैट मीन्स इस बार मैंने यहाँ पर भी क्या है, कोई प्रोटोकॉल ही अलाउ नहीं करा इस मशीन को। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करा तो मेरी इस मशीन को कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। वीरेंद्र, परवीन, सेव यस और नो? Yes, sir. और आई एम सेलेक्ट द VNet1 एंड OU सबनेट्स व्हाटएवर, कोई भी OU ले ले भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट क्लिक ऑन HR रिव्यू एंड क्रिएट। अब गाइस देखिए मैंने प्रोटोकॉल भी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, और प्रोटोकॉल भी अगर मैंने ब्लॉक कर लिया तो दैट मीन्स ये मशीन तो मेरी ऐड अब होनी ही नहीं है। क्लियर गाइस? सो अब मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं अभी तक रूल बनाता था, लाइक आई एम डिप्लॉय द रूल्स, कि मैं जो भी रूल पर्टिकुलर इसके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG के अंदर हम क्रिएट करते थे, लाइक अपना RDP या अपना HTTP या अपना SSH व्हाटएवर जो भी, अब वो रूल्स मैं यहाँ पर ना बना के वो रूल्स मैं कहां पर क्रिएट करूंगा, आई एम क्रिएट द रूल्स ऑफ फायरवॉल। वो रूल्स मैं किस लोकेशन पे क्रिएट करूंगा गाइस? फायरवॉल। गॉट इट द माय पॉइंट गाइस? मैं इस मशीन पे ना करके कहां पे कर रहा हूं? फायरवॉल से अलाउ कर रहा हूं वो रूल। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? Yes. सो आई एम जस्ट क्लिक एंड गो टू रिसोर्स, और देखिए इस मशीन पर आई थिंक सो मैंने गलती से पब्लिक आईपी भी यहां पर दे दिया। सो आई एम रिमूव दिस पब्लिक आईपी, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेटवर्किंग एंड दिस इज माय पब्लिक आईपी। कॉन्फ़िगरेशन, तो अरे यार मैं खुद ही भूल गया, पब्लिक आईपी रिमूव करना था। इसी में था डिसलॉकेट डीएसोसिएट, यस। ये डिस एंड अब मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू द फायरवॉल गाइस। मैं फायरवॉल में जाऊंगा यहाँ पे, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड देन क्लिक ऑन फायरवॉल। सो यहाँ पे मेरा फायरवॉल रेडी हो चुका है,
दिस इज माई ICCP फायरवॉल्स, और इस फायरवॉल्स के अंदर जाके आई एम क्रिएट द रूल्स, आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूल्स, और यहाँ पे ऐड ए नेट रूल, ऐड ए नेट रूल। बट यहाँ पर आप देखिए कि मेरा फायरवॉल का पब्लिक आईपी भी आ रहा होगा यहाँ पे। दिस इज माई फायरवॉल, दिस वन, वेयर इज माई फायरवॉल पब्लिक आईपी, मैनेज पब्लिक आईपी। ओके यार, मेरे फायरवॉल का पब्लिक आईपी क्यों नहीं आया यार? व्हाट हैपेंड? अजूरे फायरवॉल सबनेट स्टैंडर्ड फायरवॉल PIP, ये रहा मेरा फायरवॉल PIP भाई, क्या है? तो ये रहा मेरा पब्लिक आईपी, दिस इज माय फायरवॉल पब्लिक आईपी गाइस। तो ये मेरा फायरवॉल का पब्लिक आईपी है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन फायरवॉल्स, क्लिक ऑन फायरवॉल्स, और फायरवॉल्स पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूल्स एंड देन क्लिक ऑन नेट रूल्स। और नेट रूल्स पे भी जाने से पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट स्टैंडर्ड, इसके यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। चलिए एनीवेज, मैं वैसे भी इसका पब्लिक आईपी यूज नहीं करने वाला, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरी इस मशीन का प्राइवेट आईपी मुझे चाहिए, पब्लिक आईपी का गाइस मैं यूज ही नहीं करने वाला। तो 1.5 इज माय पब्लिक प्राइवेट आईपी। So I'm just click on net rule, net rule का नाम दे दिया लाइक का a double allow RDP, लाइक मैं यहाँ पे देता हूँ RDP protocols, so TCP। अब सोर्स IP, सोर्स टाइप मैं ले लेता हूँ IP एड्रेस। सोर्स IP में क्या देता हूँ मैं गाइस, मैं यहाँ पे स्टार दे देता हूँ। सोर्स का मतलब है स्टार, स्टार का मतलब है मैं पर्टिकुलर उस VNet के सारे IP अलाउ कर रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलर IP अलाउ करना चाहते हो तो पर्टिकुलर IP भी अलाउ कर सकते हो यहाँ पर। देन डेस्टिनेशन में आई एम पुट द फायरवॉल पब्लिक IP, एंड पोर्ट नंबर मेरा क्या होता है RDP का गाइस, यही होता है। कुछ समझे यहाँ पे क्या रूल बना है? रूल नेम इज RDP, प्रोटोकॉल इज TCP, सोर्स इज IP एड्रेस, सोर्स इज स्टार, स्टार का मतलब है एनी, कोई भी IP हो सकता है सोर्स से। डेस्टिनेशन इज माय फायरवॉल, किस चीज को अलाउ कर रहा हूँ? 3389, आई थिंक सो दिस इज माय RDP प्रोटोकॉल। ट्रांसलेट IP 1.5 और 3389, and then click rule name is allow RDP। यहां पर मैंने नाम दे दिया allow RDP। प्रायोरिटी लाइक का मैं दे देता हूं 100 या 1001 एंड एड रूल। आई एम क्रिएट वन मोर रूल्स, सो मेरा एक रूल अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और जब मैंने इस रूल को क्रिएट करा तो अब मेरे को अगर यहाँ पे क्या करना है, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ लाइक का रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप पे आके मैं फायरवॉल का IP यहाँ पर ऐड करता हूँ, और फायरवॉल का IP ऐड करने के बाद जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, सो यू कैन सी कि मेरी जो मशीन है वो मेरे अब इस फायरवॉल के IP से ही एक्सेस हो जाएगी रेदर देन मेरी उस मशीन के से। तो दिस IP इज माय पर्टिकुलर, दिस IP इज माय फायरवॉल IP। गॉट इट द पॉइंट गाइस? सर नेट रूल इंप्लीमेंट किया था तो प्रायोरिटी सेक्शन क्या मेंशन करता है, इसका क्या मतलब होता है प्रायोरिटी का? क्या चीज? और 1001 ही क्यों हमने दिया? प्रायोरिटी है, कुछ भी दे सकते हो बिटवीन, प्रायोरिटी सेक्शन प्रायोरिटी है ना, आप कोई भी दे सकते हो। हम लोगों ने क्या चीज? आप प्रायोरिटी 1 to 3 अच्छा, भी दे सकते हो, 100, ये कोई 101, फिक्स 102। होता है नहीं, उसमें? एक सर ये सेट होगा ना कि प्रायोरिटी, हाँ, प्रायोरिटी का ओके, मतलब है इट्स नॉट पहले ये रूल नेसेसरी कि चेक वो होगा, 1001 पहले हो। ये रूल चेक होगा, देन इसके बाद अनदर रूल चेक होगा। हाँ, ओके। ठीक है ना गाइस? तो देखिए सक्सेसफुली मेरा रूल हो गया, अलाउ RDP प्रोटोकॉल मैंने कर दिया है,
एंड यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक्सेस करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सो क्लिक ऑन कनेक्ट और देखिए परफेक्टली मेरी मशीन लॉगिन हो गई है। नंबर ऑफ रूल्स सर कितने भी हो सकते हैं या फिक्स है? हाँ जी, आप रूल बना सकते हो यहाँ पे 500,000 रूल्स तक आप बना सकते हो। बाकी डिपेंड्स करता है कि आपका जो है फायरवॉल टाइप्स क्या है भाई। बट गाइस देखिए यहाँ पर मेरी कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी बिकॉज क्योंकि मैंने सिर्फ फायरवॉल से एक ही प्रोटोकॉल अलाउ करा है, आरडीपी। गॉट इट। इस केस में अब मेरी क्या कि अगर मेरी मशीन है लेकिन मेरी मशीन पे तो पब्लिक आईपी है ही नहीं, यस और नो। अगर मेरी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? आई एम जस्ट इंस्टॉल द आईआईएस। मैं अगर यहाँ पे आईआईएस सर्वर इंस्टॉल करता हूँ और अपना एक वेब सर्वर अगर मैं डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ तो बट मेरी मशीन पे अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो क्या होगा? मेरा तो वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होगी ना, क्योंकि वैन में जाने के लिए तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए। बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फायरवॉल का आईपी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो मैं मल्टीपल रूल्स फायरवॉल्स के थ्रू अलाउ करा सकता हूँ अपने कि लाइक मुझे किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए। तो इस केस में अगर बैकएंड ट्रैफिक अगर मेरे पास कोई आएगा, अगर किसी को मेरा पब्लिक आईपी पता लगता है तो क्या मेरा वो मेरे सर्वर तक पहुंचेगी? देखिए यहाँ पर पब्लिक आईपी शो ही नहीं कर रहा। इज इट वीनेट 1 VM1 192.168.1.5 add roles, then next, and is it web server IIS? next and install। और मैं अगर 192.168.1.5 से करूंगा तो ये एक्सेस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो इस पर्टिकुलर मशीन पे प्रोटोकॉल भी अलाउड नहीं करा रखे हैं। क्यों गाइस? HTTP प्रोटोकॉल भी तो अलाउड नहीं है इस मशीन पे, यस और नो। और मैं अगर फायरवॉल का आईपी भी ऐड ऑन करूंगा ना गाइस यहाँ पे तो भी एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं फायरवॉल का आईपी भी यहाँ पे अगर ऐड पुट कर देता हूँ और तब भी हिट करता हूँ तो भी मेरी मशीन एक्सेस नहीं होगी। क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि मैंने अपना HTTP प्रोटोकॉल तो अलाउड ही नहीं करा, ना ही मैंने फायरवॉल से भी अलाउ करा, ना ही मैंने मशीन पे करा। बट सिक्योरिटी रीजन क्या करता है कि मैं कोई भी रूल पर्टिकुलर यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे नहीं अलाउ करूंगा। आई एम अलाउड इन फायरवॉल। तो मुझे अगर वेब सर्वर एक्सेस करना है अपना तो आई एम क्रिएटिंग द वन मोर रूल, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऐड नेट रूल्स एंड देन लाइक का अलाउ HTTP। मैं यहाँ पे HTTP अलाउ कर रहा हूँ, प्रायोरिटी में देता हूँ 1000/2, द नेम ऑफ लाइक HTTP, TCP प्रोटोकॉल, IP सोर्स स्टार, चॉइसेस यूर, आप सिंगल भी दे सकते हो। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ हेलो सर, हाँ बताइए। डेस्टिनेशन जो एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है सर, हमारे पास सपोज 10 VM है, 10 को रिमोट में लेना है तो रूट वन में बाई क्या वन, डालना पड़ेगा फिर? यहाँ पे 10 को रिमोट में 192.168.1.5 ये है 10 को ट्रांसलेट आईपी एड्रेस। लास्ट में मैंने 1.5 डाला है ना, किसके साथ ट्रांसलेट होना है? डेस्टिनेशन। ये रहा मशीन का आईपी। वरिंदर प्लीज। हाँ वो तो मैं समझ गया सर, लेकिन हर VM के लिए अलग अलग बनेंगे, फायरवॉल बनेंगे फिर? नहीं, फायरवॉल एक ही रहेगा, रूल बनाओगे ना आप। रूल मतलब हर VM के लिए? ठीक। नहीं समझे यार? अगर आपके कंपनी में 4 एम्प्लॉय हैं तो 4 रूल बनेंगे ना, चारों के लिए एक रूल से थोड़ी ना काम होगा। चारों यूजर को वो जाके ऐड तो करोगे ना। नेम तो अलग ही होंगे ना, यूजर नेम तो अलग ही होंगे ना सबके, चाहे रूल सबका आरडी पे अलाउड हो। ठीक। अभी क्या हो रहा था? मेरा वेब सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा, तो अब यू कैन चेक कि यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। बट अगर देखिए यहाँ पर मैं मशीन के सिस्टम से अगर मैं पर्टिकुलर, ये मेरा VNet 1 है और मैं ये मेरी मशीन का यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी मशीन को तो मेरी मशीन पे तो पब्लिक आईपी है ही नहीं। गॉट इट। और प्राइवेट आईपी से कुछ चीजें एक्सेसिबल होनी नहीं है। इज इट क्लियर? सर इसको एक बार ना फिर से एक बार समझना पड़ेगा पूरा।
सिंपल सा है, अगर आपको कोई भी चीज अलाउ करनी है तो दो टाइप से रूल्स हैं। या तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके एनएसजी में रूल बनाइए, इनबाउंड और आउटबाउंड। बट यहां पर मैं एनएचडी में जाके, मैं फायरवॉल में जाके नेट के थ्रू अलाउ कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन पब्लिक आईपी के थ्रू हो। ये आपके ऊपर है, मल्टीपल सिक्योरिटी। अब क्या है कि अगर मैं एनएसजी यूज करता हूं तो मेरी मशीन पे पब्लिक आईपी होना जरूरी है, तभी सारी चीजें चलेंगी। बट मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मेरी मशीन पे पब्लिक आईपी हो, क्योंकि मेरी मशीन पे अगर पब्लिक आईपी है तो दैट मीन्स कि मेरा डायरेक्ट ट्रैफिक मेरी मशीन पे आएगा। यस और नो? अच्छा सर, तो अगर अगर कुछ एप्लीकेशन, सपोज हमने इस मशीन को रिमोट ले गए हैं, इसमें वेबसाइट हमने बना रखा है, ठीक है, और वेबसाइट अपने लैपटॉप से हमें कुछ एप्लीकेशन लोड करना है सर्वर पे, मतलब एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो करो ना। वो ये एप्लीकेशन रहा ना हमारे सर्वर लैपटॉप में पड़ा एक्सेस हुआ है, तो, तो कैसे होगा? ये रहा ना, ये सर्वर एक्सेस तो कर रखा है मेरे को। अगर कोई वेबसाइट अपलोड करनी है इस पे, मेरा ये सिस्टम है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट है यहाँ पे, लाइक पीकॉइंट। ये वेबसाइट मैंने यहाँ से कॉपी करी, और कॉपी नहीं करने नहीं के सर, बाद में मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज क्या होता है, तो कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे ना, मतलब जैसे लैपटॉप में एप्लीकेशन पड़ी है, उसको डिप्लॉय करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज फाइल में कुछ आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर डालना पड़ता है मशीन पे, जहाँ डिप्लॉय करना है टारगेट मशीन पे। हाँ, तो वो आपका उस आपका केस में एक्सपर्ट क्या करना देगा पड़ेगा? ना। वो आपका देगा ना, वो पर्टिकुलर वो आईपी आपको एलोकेट करेगा ना। वो आपको नहीं तो सिस्टम का, उसके लिए मैं, सर्वर का आईपी नहीं देगा। वो आपके उस उसके लिए क्या पर्टिकुलर कौन सा? एप्लीकेशन, नहीं नहीं नहीं, देखो समझिए मेरी बात। अगर हमारी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी व्हाटएवर, तुम जावा, पीएचपी, पाइथन, व्हाटएवर आप कुछ भी करते हो, आपको सिर्फ दो चीज चाहिए होती है, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर और आईपी, या आपको वो एक एंड पॉइंट देगा। हाँ, टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर चाहिए होता है हमें। हाँ, तो वो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर हम आपको देंगे, दैट्स इट। बट वो आईपी और पोर्ट नंबर हमारे फायरवॉल से भी तो अलाउड होगा। लाइक मैंने आपको दे दिया 192.168.1.5, मैंने क्या, आप इस आईपी को और इस पोर्ट नंबर को यूज करो, 80 को, दैट्स इट। अब मेरे को फायरवॉल से वो अलाउड कराना है, तो फायरवॉल में मैंने रूल बना ही दिया है, तो मैंने फायरवॉल से वो अलाउड ही कर दिया है। ये देखिए, यहाँ से मैंने पोर्ट नंबर 80 को अलाउड ही कर दिया इस रूल के अंदर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो गई इसी आईपी पे। अब मेरे को अगर इसी को नेम से एक्सेस करना है, तो आई एम क्रिएट द डीएनएस रिकॉर्ड। गॉट इट द पॉइंट? गाइस, इज इट क्लियर? जी सर, अब ये वीडियो आप भेजेंगे तो और एक बार करके। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछना था, तो फिर ये हाँ, ये अकाउंट, ये जो अकाउंट